امپلیمنٹیشن کمیٹی کا تیسرا اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل، مشیر وزیر اعلیٰ محمد حنیف خان پتافی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کا کہنا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں سیوریج، صفائی اور دیگر معاملات کے حل کے لیے مل کر کام کیا جائے گا۔ ریڈی وانوں کی رجسٹریشن ہوگی، اہم بازاروں میں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ مشیر صحت محمد حنیف خان پتافی کا کہنا ہے کہ صفائی اور سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کیا جائے۔ تجاوزات نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، تجاوزات مافیا کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا۔ کمشنر ساجد ظفر ڈال کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اراکین اسمبلی کی معاونت سے میونسپل سروسز اور دیگر مسائل احسن طریقے سے حل کریں۔ کارپوریشن ڈی جی خان کو مضبوط کرنے کے لیے واجبات کی وصولی کو فوکس کیا جائے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ڈی جی خان کے 500 دکانداروں کو تجاوزات پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور تجاوزات مافیا کے خلاف مقدمات کے لیے متعلقہ تھانوں میں 90 استغاثے جمع کرانے کے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ سیکرٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب احسان بھٹا کی ملتان آمد ہوئی۔ کمشنر جاوید اختر محمود سے ملاقات۔ سیکرٹری اسپورٹس نے قلعہ کوہنہ قاسم اسٹیڈیم فوری مکمل کرنے کی ہدایات کر دی۔ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب احسان بھٹا نے ملتان آمد پر کمشنر ملتان جاوید اختر سے ملاقات کی، جس میں ملتان ڈویژن میں سپورٹس اور سیاحت کے فروغ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر نے سیکرٹری احسان بھٹا کا ڈویژن کے مسائل میں ذاتی دلچسپی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ احسان بھٹا صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لائیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ احسان بھٹا صاحب جیسے ڈائنامک اور بڑے ایکٹیو قسم کے ہمارے سیکرٹری ہیں یوتھ افیئر سپورٹس کے۔ ملاقات کے بعد سیکرٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب احسان بھٹا کی زیر صدارت کمشنر آفس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں سپورٹس، یوتھ افیئرز اور سیاحت کی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری اسپورٹس پنجاب احسان بھٹا نے فوری طور پر قلعہ کوہنہ قاسم باغ اسٹیڈیم بحال کرنے کا حکم دیا۔ سپورٹس کمپلیکس کو 31 دسمبر جبکہ سپورٹس کمپلیکس کرکٹ گراؤنڈ کی تکمیل کے لیے 15 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو قومی کاز قرار دیا گیا ہے، اسی لیے سپورٹس ڈپارٹمنٹ نے متی تل ہاکی اسٹیڈیم کی جگہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو دی ہے۔ میں 3 چیزوں کے لیے آیا ہوں بیسیکلی۔ ایک تو سپورٹس کی ہے ہماری ڈیولپمنٹ کی سکیمز، ایک یوتھ افیئر کی جیسا ای لائبریری ہے اس کو دیکھنا ہے، ایک میرے پاس ٹورزم کا بھی ہے سیکرٹری کا چارج، تو میں آرکیالوجی اور ٹی ڈی سی پی جو ٹورزم کے حوالے سے وہ آپ کے کمشنر صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ دمدمہ جو آپ کا مین جگہ ہے وہاں پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر کوئی ٹورسٹ کا ریزورٹ بنایا جائے۔ اجلاس میں ملتان ڈویژن کے تمام سپورٹس آفیسرز، ایس ڈی او، آرکیالوجی سمیت تمام انتظامی افسران نے شرکت کی۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ ملتان کے واسیوں کے لیے اچھی خبر ہے، 8 کنال سے زائد رقبے پر تعمیر کیا گیا ای خدمت سینٹر فعال ہو گیا۔ ای خدمت سینٹر کی تعمیر پر 15 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ خدمت سینٹر میں 78 مختلف خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 24 خدمات کنسٹرکشن اور 9 خدمات ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہیں۔ ای خدمت سینٹر میں تمام نظام کمپیوٹرائزڈ ہے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا 55 اہلکاروں پر مشتمل عملہ شہریوں کی خدمت پر مامور ہے۔ صوبائی اور وفاقی محکموں سے متعلق تمام سروسز فراہم کرنے کے لیے 24 کاؤنٹر بنائے گئے ہیں۔ 28 فیسلٹیز اسٹیبلش ہو چکی ہیں، جس میں سے تقریباً 45 سے زیادہ فیسلٹیز جو ہے وہ آپریشنل ہے۔ باقی بھی انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ ہفتے 10 دن تک کمپلیٹ فیسلٹیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹا کا کہنا تھا کہ پبلک سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے ای خدمت سروس کا قیام ایک انقلابی قدم ہے۔ اب سروسز کی فراہمی میں وقت کی بچت ہوگی۔ ڈومیسائل، لائسنس وغیرہ تیار ہونے پر میسج کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گا۔ کسی نے ڈومیسائل کے لیے اپلائی کیا، کسی نے لائسنس کے لیے کیا یا ڈاکومنٹس کے لیے کیا، میپس کے لیے، تو وہ جب کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو دوبارہ یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو اپلیکنٹ ہے اس کے گھر پہ ہم یہ پہنچا سکیں۔ ڈی سی ملتان کا مزید کہنا تھا کہ شہری کو مطلوبہ ڈاکومنٹ کوریئر سروس کے ذریعے گھر بھیجا جائے گا۔ ملتان پاکستان کا پہلا ضلع ہے جہاں ای فائلنگ سسٹم لانچ کیا گیا ہے۔ کیمرامین ریڈی نواز کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بات کریں گے کووڈ-19 کی۔ وکٹوریا ہاسپٹل انتظامیہ کا گھناؤنا کھیل۔ کرونا وائرس کے شکار پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر محمد فیاض کو سول اسپتال کی وکٹوریا اسپتال کے ICU وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ طاہر الاشاری کی رپورٹ۔
मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया का अनोखा फैसला, आम मरीज रुल गए। कोरोना के मरीज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद फयाज को शोबा इमरजेंसी से पेट्स आईसीयू मुंतकिल कर दिया गया। पहले से जेर इलाज 7 बच्चों को तशवीशनाक हालत में दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया गया है, जबकि कोरोना के मरीजों के लिए सिविल अस्पताल मुख्तस है। कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया ने प्रोफेसर ख्वाजा फयाज को सिविल अस्पताल की बजाय विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू मुंतकिल कर दिया। प्रोफेसर साहब को इमरजेंसी में लाया गया तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे और उसी वक्त उनको फौरी तौर पे वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया और बावजूद इसके वेंटिलेटर के वो इम्प्रूव नहीं हो रहे थे और सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो 6-7 किलोमीटर दूर है और इस तरह के मेजर मिसहैप हो सकता है। प्रिंसिपल कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुसैन का कहना था कि बेहतर इलाज के लिए मरीज को आईसीयू मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक वाईडी और प्रोफेसर की फैमिली के दबाव की वजह से बच्चों के वार्ड को खाली करके मरीज को आईसीयू में मुंतकिल किया गया। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। कोरोना सरगोदा में पंजे गाड़ने लगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल साहिवाल की 3 तालिबात कोरोना वायरस का शिकार हो गईं। स्कूल को 7 रोज के लिए सील कर दिया गया। में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को तेजी से देखा जा रहा है। सरगोदा में भी मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डिवीजन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुतासरा अफराद में 3 सरगोदा, 3 खुशाब, जबकि 4 का ताल्लुक मियांवाली से है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल साहिवाल की 3 तालिबात भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई, जिस पर महकमा तालीम की जानिब से स्कूल को 7 रोज के लिए सील कर दिया गया। मुल्तान में मिलाद के हवाले से सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल की जानिब से नवा शहर से प्रेस क्लब तक इस्तकबाली मिलाद रैली निकाली गई। आइए आपको दिखाते हैं जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। में सूबाई नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत फरूक खान सईदी की क़यादत में इस्तकबाल रबीउल अव्वल रैली निकाली गई। फरूक खान सईदी का कहना था कि रबीउल अव्वल मोहब्बत और अमन का महीना है। आशिकाने रसूल रबीउल अव्वल को ईद की तरह मनाते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि मैंने ईमान वालों पर एहसान फरमाया कि उनमें रसूल को भेजा, तो उस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए ये सरकार के दीवाने और परवाने और मिलादी यहाँ मौजूद हैं। रहनुमा मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल अयूब मुगल का कहना था कि हमारे यहाँ कोई इख्तलाफी बात नहीं। मौसम इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब डूबे हुए हैं। हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक फैले। इसका पैगाम दे रहे हैं और हम इन रबीउल अव्वल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के पैगाम को हम कर रहे हैं। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। रैली में बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की और सलाम भी पढ़ा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। आगे बढ़ते हैं। पंजाब सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक को मुल्तान में प्राइस कंट्रोल की जिम्मेदारियां सौंप दी। तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि महंगाई की वजह से हुकूमत की साख मुतासिर हो रही है। मुंतखब नुमाइंदे अवाम को जवाब दे हैं, किसी को भी खुद साख्ता महंगाई नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि मेंबरान असम्बली अपने हलकों में अशिया जरूरिया की दस्तयाबी और कीमतों को मॉनिटर करें। डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि मुल्क में आटे और चीनी की कोई किल्लत नहीं, तजावुजात और फजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके चीनी का रेट मुकर्रर करने की जरूरत है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक, मुआविन खसूसी जावेद अख्तर अंसारी, मलिक अहमद हसन MNA, पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, मेंबरान असम्बली वसीम खान बादुजई, कासिम खान लंगा, सबीन गुल, महेंद्र पाल सिंह, अदनान डोगर, खालिद जावेद वड़ाइश और अकरम किन्नू ने शिरकत की, जबकि जिला के तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। बहावलपुर में आटे की कोई किल्लत नहीं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर महर एजाज सियाल कहते हैं अवाम सरकारी पॉइंट से आटा लेकर खाएं। प्राइस कंट्रोल कमेटी सख्त मॉनिटरिंग कर रही है। फूड कंट्रोलर महर एजाज सियाल ने रोही को बताया कि बहावलपुर जिले में आटा न मिलने की कोई शिकायत नहीं। फ्लोर मिल्स की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग जारी है। सरकारी आटा मेयारी है और अवाम बेफिक्र होकर खाएं। हम रोजाना की बुनियाद पर फ्लोर मिल्स का भी मुआयना कर रहे हैं और फील्ड में भी इस चीज को चेक कर रहे हैं। इवन कि हम एक्सट्रैक्शन रेशो, जो आपने वाइट का सवाल किया ना, उस हवाले से एक्सट्रैक्शन रेशो पे हमको मेरे ख्याल में इस महीने में 20 मिलों को 50-50 हज़ार जुर्माना कर चुके हैं।
ان का कहना था कि फ्लोर मिल्स को जुर्माने भी किए जबकि कई डिपार्टमेंट भी चेक कर रहे हैं। फ्लोर मिल्स पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, ग्रेड 17 के लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, लाइफ स्टॉक के हैं, मुख्तलिफ हैं। वो वहाँ से पूरा जो एक कोटे के हिसाब से हमारा थैला होता है उसको सुबह डिस्पैच करवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने कहा कि जिले इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोजों पर सख्ती करे ताकि आटा महंगा होने की शिकायत ही पैदा न हो। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में पोलियो केसेस में इजाफा, मुल्तान हाई रिस्क करार। पोलियो के खतरे को कम करने के लिए महकमा सेहत के मुल्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियां शुरू हो गईं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के अजला में पोलियो के केसेस सामने आने के बाद मुल्तान में पोलियो का खतरा बढ़ गया। विहारी, भावलपुर, रहीम शाह खान, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान में पोलियो के केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुल्तान को भी हाई रिस्क एरिया करार दिया जा चुका है। मुल्तान के 2 इलाकों अली टाउन, सूरज मियानी से सीवरेज के नमूनों से पोलियो पॉजिटिव आया, जिसके बाद मुहिम को तेज किया गया। महकमे सेहत की जानिब से जिला भर में 26 अक्टूबर को मुहिम शुरू की जाएगी। मुल्तान जो है वो चूँकि बहुत ज्यादा हाई रिस्क है और पूरी ट्रांसपोर्टेशन जो है साथ के एडजेसेंट जिलों से होती है मुसलसल, इसी सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने खुसूसी तौर पर ये पोलियो की कौमी मुहिम जो हैं वो हर महीने मुनक्कद करने का इनेकाद किया है। इस तरह से 26 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक हमारे मुल्तान में भी 5 दिन रोजा ये मुहिम जारी होने वाली है। इंसदाद पोलियो मुहिम में जिला भर में 9 लाख से ज्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर PS डॉक्टर अली मेहदी के मुताबिक 2000 के करीब टीमें तश्कील दी गई हैं। 9 लाख के करीब हमारा टारगेट होता है और तकरीबन 2000 की हमारी पोलियो की टीम्स हैं जो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे। इसमें खास तौर पर मैं जिक्र करूं कि कोरोना की एक वेव दोबारा से जो है वो हो रही है, तो उसमें कोरोना के SOPs को हमने खास तौर पे मद्देनजर रखा है और टीमों को खास हदायत की हैं कि वो कोरोना के SOPs को फॉलो करते हुए बच्चों को कतरे पिलाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर PS डॉक्टर अली मेहदी का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। रहीमिया खान में पोलियो केस सामने आने के बाद 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम की भरपूर तैयारियां। पोलियो मुहिम के अहदाफ हासिल करने के लिए अफरादी कुव्वत बढ़ा दी गई। UCMOs, एरिया इंचार्ज, मोबाइल टीमों का इजाफा कर दिया गया है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। खान के हमसाया इजला और जोन में गोटकी, कश्मोर, जैकबाद, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। रहीम यार खान में भी एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए अफरादी कुव्वत पर भरपूर तवज्जो देते हुए स्क्वाड में UCMOs, 61 एरिया इंचार्ज और 301 मोबाइल टीमों का इजाफा कर दिया गया है। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सहावत अली गंदावा का कहना था कि पोलियो मुहिम के अहदाफ हासिल करने के लिए पहले पोलियो वर्कर्स की भर्ती की गई, अब नई अफरादी कुव्वत को शामिल कर लिया गया है। पोलियो मुहिम में वर्कर्स की खाली सीटों की भर्ती के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, HR और प्रिवेंटिव और WHO के नुमाइंदे पर मुश्तमिल टीम बना दी गई है। 9 UCMOs और 61 एरिया इंचार्जेस और 301 मोबाइल टीम्स इस दफा ऐड की गई हैं हमारे जिले में, जो कि अक्टूबर में काम करेंगी और उनकी जो इंडक्शन हो चुकी है और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो चुकी है और जो इस मुहिम में है, अक्टूबर वाली मुहिम में, वो लोग फील्ड में नजर आएंगे। पोलियो मुहिम में 9,70,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 2273 मोबाइल टीमें, 114 ट्रांजिट, 250 फिक्स टीमें, 145 UCMOs और 539 एरिया इंचार्ज हिस्सा लेंगी। वालिदैन बच्चों को 10 मूजी बीमारियों से हिफाजती टीकाजात का कोर्स मुकम्मल करवा के बचा सकते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। ज़करिया टाउन मुल्तान के बासियों के लिए खुशखबरी है। सीवरेज का दरीना मसला हल होने के करीब है। डिस्पोजल की तामीर तेजी से जारी है। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाका ज़करिया टाउन में सीवरेज का दरीना मसला हल होने के करीब पहुंच गया। बड़े डिस्पोजल की तामीर का काम जारी है। PTI रहनुमा राव आसिफ अनवर का कहना है कि 50,000 से ज्यादा आबादी मुस्तफीद होगी। 30 साल पुराना मसला हल किया जा रहा है। 50,000 की आबादी जो है इससे मुस्तफीद होगी और ये बीमारियों से बच जाएंगे। ये सीवरेज बहुत जरूरी है आपके इलाके में होना और ये सीवरेज 30 साल पुराना ये मंसूबा था जो आज तक ना बन सका। हमारी गवर्नमेंट में आके ये मंसूबा बन रहा है। डिस्पोजल का मंसूबा 7 कनाल रकबे पर मुहित है। इस पर 200 मिलियन से ज्यादा लागत आएगी। 200 मिलियन के खतीर रकम से ये बन रहा है। इंशाल्लाह ये चंद माह के अंदर हम इसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और पूरे इलाके को इंतहाई इससे फायदा होगा। ज़करिया टाउन के शहरी खुश हैं कि अब जल्द ही इनके सीवरेज मसाइल हल हो जाएंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।
कमिश्नर सरगोदा का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। सरगोदा की गवाला कॉलोनी में सोलिंग, स्ट्रीट लाइट्स और पानी के इंतजामात मुकम्मल न हो सके। रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। दौरे हुकूमत में झाल चक्कियां के करीब मवेशी मंडी का कयाम अमल में लाया गया। 118 किनाल पर 317 प्लांट्स बनाए गए। 216 मवेशी पाल हजरात ने जगह के हसूल के लिए दरखास्तें जमा करवाई। शहर में मवेशियों के बायस सीवेज के संगीन मसाइल दरपेश हैं। तमाम मुतलका अफराद को मवेशी गवाला कॉलोनी में मुंतकिल करने के नोटिस जारी किए गए। ताहम मवेशी पाल हजरात ने गवाला कॉलोनी में सहूलियात की अदम दस्तियाबी की शिकायत दर्ज करवाई। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद ने इंतजामात मुकम्मल करने के लिए 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। ताहम उनके अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। गवाला कॉलोनी में पानी है, न सोलिंग और न ही स्ट्रीट लाइट्स हैं और न ही मवेशियों को मुंतकिल किया जा सका। लाइट भी नहीं सही लगी, पानी सोलंग ही रहा है। अच्छा, वो भी रहा है हाली, कोई जाली उन भी कम रहा, पानी भी कोई नहीं मिठा। सिर्फ वजह तो लाया गया, नहीं तो लाइट कोई नहीं उस टाइम लगी। अच्छा। हुन बिजली लगी। अच्छा, बिजली पहले नहीं सी, नहीं कोई नहीं जी। हुन इंतजामिया का कहना है गवाला कॉलोनी में बिजली का मसला हल कर लिया गया है। दीगर इंतजामात भी जल्द मुकम्मल करके मवेशियों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। बहावलपुर में सराइकी मुशारे का इनेकाद किया गया। सराइकी जबान के नामवर शायर शाकिर शुजाबादी और जहांगीर मुखलिस समेत दीगर शोरा ने शिरकत की। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। अतहल अशारी की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर आर्टिस्ट काउंसिल और सराइकी शोरा हकूक काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का इनेकाद किया गया। जब शोरा ने कलाम पेश किया तो हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके। सराइकी जुबान के नामवर शायर शाकिर शुजाबादी ने मखसूस अंदाज में कलाम पढ़कर महफिल लूट ली। मेरी दुआ जबान दे, छाले सुखा दे। मेरी दुआ जबान दे, छाले सुखा दीते। आखिर कलम गरीब को बोलन सिखा देते। मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा जहांगीर मुखलिस, अमानुल्लाह अशरत और गैर बुखारी ने अपना कलाम पेश किया तो हाल वाह वाह की आवाज से गूंज उठा। न साडे अंदर दा कोई मौसम न बाहरों कोई नजारे होंदन। असां त अंधे मुताज चेहरे असाडे इवें गुजारे होंदन। कासा दरवेश दा मुमकिन नहीं खाली होवे। साकिया रिंद दी ख्वाहिश है जो हाली होवे। इहो गयूर बुजुर्गा हा दसाया मेकू। इहो गयूर बुजुर्गा हा दसाया मेकू। यार ता यार है दुश्मन भी हलाली होवे। तकरीब के मेहमान खसूसी कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल का कहना था उन्हें सराइकी जुबान से इश्क है। पंजाब हुकूमत तमाम मुकामी जुबानों की तरवीज के लिए काम कर रही है। सराइकी वसीयत के लिए और जिस तरह उन गुलाबी सराइकी बुलेट क्योंकि बड़ा मैंने बड़ी खुशगवार हैरत की है। यकीन करो कि शोरा कलाम दी होंज उन्होंने दी उम्मीद उन्हें मैंने बड़ा इंटरेस्ट किया। सब तो बड़ी गल में आर्टिस्ट काउंसिल बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम होने वाले मुशायरे में डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जुबैर रब्बानी समेत सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। का मुलजिम को 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा का हुक्म भी जारी कर दिया गया। दवा पिलाकर बेहोश करने और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे में मुलविस 63 साला मुबैना डॉक्टर मुलजिम को तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों की रोशनी में उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से प्रोसिक्यूटर्स चौधरी जियाउर रहमान और सैयद सलीम बहार ने दलाइल पेश किए। फाजिल अदालत में पुलिस थाना सीतलमाड़ी मुल्तान के मुताबिक मुलजिम रब नवाज के खिलाफ 17 साला से ने 30 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि मुलजिम पेशे के एतबार से डॉक्टर है। मुतासरा मुलजिम के पास तेज बुखार की हालत में चेकअप कराने के लिए गई थी। मुलजिम डॉक्टर ने कमरे में ले जाकर ड्रिप लगा दी। ड्रिप में नशा आवर दवा मिलाई गई थी जिससे बेहोश हो गई। इस दौरान मुलजिम ने जिनसी हवस का निशाना बनाया
बेहोशी की हालत में चीखों पुकार पर कमरे के बाहर मौजूद लड़की के वर्षा आ गए, जिन्होंने मुलजिम को बरहना हालत में भागते हुए देखा। पुलिस की जानिब से ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। समाअत के दौरान तमाम गवाहों और सबूतों को काफी करार देते हुए अदालत ने मुलजिम को कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को मजीद कैद भुगतना होगी। मुल्तान में कम उम्र बच्चियों की शादी कराने के मुकदमे में नामजद इश्तिहारी मुलजिम फैसल की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस थाना कैंट से रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में कमसिन बच्चियों की बड़ी उम्र के अफराद के साथ शादी कराने के मुकदमे में नामजद मुलजिम फैसल ने 10 माह के बाद अदालत से रुजू कर लिया। मुकदमे में अबूरी जमानत पर समाअत हुई। मुद्दई के वकील शहबाज खान अदालत में पेश हुए और दलाइल दिए। उनका कहना था कि मुलजिमान ने कमसिन बच्चियों के निकाह नामे पर साजबाज करके उम्र ज्यादा लिखवाई है। निकाह नामा और बच्चियों की पैदाइश के बारे में यूनियन काउंसिल में इंदराज भी नहीं, बेफार्म शादी के 1 माह बाद बनवाया गया, जबकि मुलजिम भी इश्तिहारी है। ये जी मुल्जिम मोहम्मद फैसल है। ये 10 महीने पहले ये फ्रॉर था, पीओ हो गया था, प्रोक्लेम ऑफेंडर इश्तिहारी हो गया था। अब इसने अबूरी जमानत दायर की है। उसके लिए उसने कहा जी मैं शामिल तफ्तीश हो गया हूँ, गलत बयानी किया, हालांकि वो ऑन द रिकॉर्ड मिसल में कोई शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। जज साहब ने ये डायरेक्शन किया है कि आप शामिल तफ्तीश हों और पुलिस को भी डायरेक्शन की गई है कि ये मुलजिम को शामिल तफ्तीश करें। मुलजिमान के वकला का कहना था कि बच्चियों की उम्रें 16 साल से जायद हैं। दुल्हे और दुल्हने आपस में मामूजाद कजन हैं, इसलिए कम उम्री की दफात आयद नहीं होती। जमानतें मंजूर की जाएं। ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया गया है। वो लॉ तो बना हुआ है पर उसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। उस लॉ में ये है कि अगर 16 साल से कम उम्र की कोई बच्ची है तो वो ऑफेंस है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में। तो यहाँ अक्सर लोग नोट नहीं करते और दूसरा क्या कहते हैं, अगर नोट हो तो पुलिस वो सही तरह एक्शन नहीं लेती। अगर उस एक्ट पे सही तरह इम्प्लीमेंटेशन हो तो इस चीज को रोका जा सकता है। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद मुलजिमान की अबूरी जमानत में तौसीह का रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि पुलिस थाना कैंट ने कमसिन बच्चियों की शादी कराने पर 8 नामजद मुलजिमान समेत 40 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें बताया गया था कि 45 साल फैसल का 10 साल फायजा से और 37 साल एहसन का 12 साल तैयबा से निकाह हुआ था। मुलजिमान के खिलाफ चोरी, कत्ल की धमकियों और चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान में सोडा वाटर, ऑयल इंडस्ट्रीज की चेकिंग की गई और रहीमिया खान में PFA का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सोडा वाटर, ऑयल इंडस्ट्रीज की चेकिंग की गई। दौरान कार्रवाई 2880 खाली बोतलें, 380 लीटर सोडा वाटर, 5 फिलिंग मशीनें बरामद हुई। रहीमिया खान में PFA का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मिल्क सेफ्टी टीम ने मिलावटी दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली। 4000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि दूध में फैट, ठोसपन, ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई और मोबाइल लैब्स दूध बरदार गाड़ियों के अलावा मिल्क पॉइंट्स की भी चेकिंग करेंगी। एडिशनल IG साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने राजनपुर का दौरा किया। उधर DPO DG खान उमर सईद मलिक ने तहसील कोट छुट्टा का दौरा किया और कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने दमदमा का विजिट किया। खबरों की तफसीलात इस रिपोर्ट में। IG साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने राजनपुर का दौरा किया। रुझान कच्चा में डाकुओं के खिलाफ हिकमत अमली का जायजा लिया और इस मौका पर RPO DG खान और DPO एहसन सैफुल्लाह भी मौजूद थे। DPO डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक का तहसील कोट चट्ठा का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजामात और दीगर मामलात का जायजा समेत थाने का रिकॉर्ड भी चेक किया। सेक्रेटरी इंसानी हकूक और इकलियती अमूर नदीमुर रहमान का डेरा गाजी खान का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ज़िलाई ह्यूमन राइट्स कमेटी के अरकान और इकलियती बरादरी के नुमाइंदगान के इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास चरासी का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल का दौरा, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को चेक किया, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डेरा गाजी खान में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास का THQ कोट अद्दू का दौरा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास ने अमले की हाजिरी को चेक किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने अस्पताल में सफाई सुथराई, अद्वियात और दीगर सूरत हाल का भी जायजा लिया। अशिया खुरोनोश के निर्ख चेक करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद का लैया का दौरा, जायद कीमतें वसूल करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों को 25,000 जुर्माने किए। अब रेगिस्तानों में भी फूल खिलेंगे। चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज के साथीदार ने रोही में तेलदार जिनास की काश्त का कामयाब तजर्बा कर लिया था। लशानी की रिपोर्ट देखिए।
के लिए खुशखबरी। चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज के असातिज़ा ने स्प्रिंकल इरिगेशन पर तेलदार अजनास की काश्त का कामयाब तजर्बा कर लिया। डायरेक्टर चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम ने बताया कि ये मंसूबा खित्ते की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। 20 डेज हमें क्रॉप जो है मिल गई और ये ऑयल सीड है और इसको अब बहुत इसकी मेडिसिनल वर्थ भी है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं कॉस्मेटिक्स में, तो इसकी कमर्शियल वर्थ भी है और ये मैं बहुत हैप्पी हूँ। डॉक्टर जो हमारे रिसर्चर हैं साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद रिजवान, उनका ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट गया है। इस मंसूबे पर काम करने वाले डॉक्टर शाहिद रिजवान का कहना था कि जिन इलाकों में पानी इंतहाई कम और नमकीन है, कोई फसल काश्त नहीं होती, वहाँ स्प्रिंकल इरिगेशन पर तेलदार अजनास लगाकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। हमारा मकसद ये है कि हम ऐसी क्रॉप हम उनकी यूटिलाइजेशन करें जो कि इस एनवायरनमेंट के अंदर स्पेशली बहावलपुर और चोलिस्तान में सर्वाइव कर सके और यहाँ का जो फार्मर है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। आपने देखा होगा कि ये ना सिर्फ ऑयल सीड क्रॉप है बल्कि इसमें हमने मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, हमने बेरी का दरख्त लगाया जो कि यहाँ का लोकल फूड है, उससे हम अपने मैक्सिमम अर्निंग भी कर सकते हैं और यहाँ की लैंड को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। पाकिस्तान सालाना 300 अरब से जायद का खुर्दनी तेल बाहर से मंगवाता है। अगर रोही चोलिस्तान में इस तरह के मंसूबों पर काम किया जाए तो कीमती सरमाया बचाया जा सकता है। खेल के मैदान से आपको अपडेट करते चले। मुल्तान में शोएब बलोच मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। मुल्तान सुल्तान की फाइनल टाकरे में कासिम बेला की टीम को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मुल्तान के इलाके वहदत कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड में जारी शोएब बलोच मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मुल्तान सुल्तान और कासिम बेला की टीमों के माबैन खेला गया। मुकर्रर वक्त के दौरान दोनों टीमों की जानिब से बेहतरीन खेल पेश किया गया, लेकिन कोई टीम भी गोल ना कर सकी। पेनल्टी किक्स पर मुल्तान सुल्तान की टीम ने कासिम बेला की टीम को शिकस्त दे दी। इंशाल्लाह हम इस तरह टूर्नामेंट कराते रहेंगे और ग्राउंड आबाद करते रहेंगे। हमारा मेन मिशन ग्राउंडों का आबाद करना, हॉस्पिटल वीरान करना और यूथ को ग्राउंड में लेके आना। फाइनल मुकाबला देखने के लिए मुशीर वजीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी भी मौजूद थे। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में खेलों की सरगर्मियां जारी रखने के लिए मस्बत इकदाम किए जाएंगे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी अपनी है कि इन खेलों के लिए हम टाइम भी निकालेंगे और जो भी जरूरियात इंशाल्लाह इनको जो होगी वो भी इंशाल्लाह हम पे करेंगे। फाइनल मुकाबला देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद के साथ साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर शाह भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। बहावलपुर में ट्रायथलॉन मुकाबलों के तहत दिलचस्प खेल पेश किए गए। खितामी तकरीब डीएचए बहावलपुर में मुनक्किद की गई। साबिक ओलंपियन समीउल्लाह और कमिश्नर बहावलपुर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बहावलपुर में नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने के लिए ट्रॉली इथलान मुकाबलों का इनाकाद किया गया, जिसमें दौड़, साइकिलिंग और तैराकी के मुकाबले हुए, जबकि एथलीट्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से इसमें हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए। एक हफ्ता मेहनत की, हम उधर बॉर्डर पे रहते हैं, एक हफ्ता हमें मौका मिला था। हमारी कमजोर साइकिलें थी, साइकिलें भी इतनी जबरदस्त नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमने मेहनत की है और हमें यह सिला मिला। खिलाड़ियों का कहना था कि इस दफा तैयारी के लिए कम वक्त मिला, आइंदा भरपूर तैयारी के साथ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है 1 माह, तो शायद फर्स्ट पोजीशन या सेकंड ले सकते थे, तो आइंदा नेक्स्ट बार जब कंपटीशन हुआ तो इंशाल्लाह जरूर हिस्सा लेंगे। कमिश्नर बहावलपुर का कहना था कि ऐसी तकारीब नौजवानों को ग्राउंड से जोड़ने में मददगार साबित होती है। इनामी रकम नौजवानों को ग्राउंड में आने पर मजबूर करती है। मकरान कोस्टल हाईवे के शहीद अब्दुल लतीफ की नमाज जनाजा तौसर शरीफ की बस्ती मंगरूठा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एफसी एहलकारों के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। अहवाल बताएंगे अजमत बुज़दार।
शहीद अब्दुल लतीफ मेरानी ने गुज़श्ता रोज मकरान कोस्टल हाईवे के करीब एक दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश किया। उनकी नमाज जनाजा बाई कस्बा मंगरोटरा में अदा की गई। नमाज जनाजा में अफसी अलकारों और मोहसिन इलाका SHO सिटी राना शबीर ने शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ अबाई कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक किया गया। कब्र पर सलामी दी गई। शहीद के भाइयों ने कहा कि इन्हें अपने भाई की शहादत पर फख्र है। वो सब वतन की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ये भाई बहन अगर मुल्क को जरूरत थी वो भी देने के तैयार है। सारा बेटा भी इंशाअल्लाह अल्लाह मुल्क की हिफाजत देखी थे वो भी कुर्बानी होने के तैयार है। मुझे इसकी शहादत पर बड़ा फख्र है और जो है इसका एक बेटा था और एक बीवी है इसकी, और इसने जो है ना बहुत अच्छी ड्यूटी की है और हमें भी मुतासर किया है, कहते FC में भर्ती हो जाओ। शहीद ने पसमानदगान में बेवा और 3 साला बेटा छोड़ा है। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले भी वतन के असल हीरो हैं। कैमरा टीम के साथ उस्मत बुज़दार, तौनसा शरीफ। मकरान कोस्टल हाईवे पर FC की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में शहीद होने वाले कोट सुल्तान के फौजी आबिद हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबिद हुसैन को शहीद के दस्ते खाकी को सपुर्दे खाक कर दिया गया है। शहीद की कब्र पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से फूल भी चढ़ाए गए हैं। वही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखिए सिर्फ